آج کل ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک میں مائیں کام پر جا رہی ہیں اور مرد گھر بیٹھے بچے سنبھال رہے ہیں۔ مرد اور عورتیں برابر ہیں مگر ایک جیسی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک امتحان میں کافی طلبہ شریک ہیں، دو ٹاپ پر آتے ہیں، ان کے نمبر ایک جیسے ہیں، ایک کے نمبر 100 میں سے 80 ہیں، دوسرے کے برابر ہیں۔ اسی پرچے میں 10 سوال آئے، پہلے طالب علم نے ہر سوال میں 8 نمبر لیے۔ السلام علیکم جی تواڈے اپنے یوٹیوب چینل تے میرا نام محمد آصف، میرا تعلق شہر رکاڑے تو میں امید کرنا کہ تسی ٹھیک ٹھاک ہوو گے۔ اللہ پاک تانوں خوش و آباد رکھے۔ الحمدللہ جمعہ مبارک ہے تے سارے میرے والوں جمعہ مبارک۔ تے اج آپ یاد کرنے ڈاکٹر ذاکر نائک تے ایک مسلم لڑکی دے سوال دی ویڈیو بہت ہی ایمان خروز ویڈیو تے ویڈیو نو آخر تک لازمی ویکھنا۔ جے تسی ہلے تک بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتا تے چینل نو سبسکرائب کر کے ویڈیو نو لائک کر کے تے بیل آئیکن نو پریس کر دے رہو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو دا نوٹیفیکیشن تہاڈے کو سب تو پہلے پہنچ جاوے۔ ویڈیو لائک پہلے کر دینا، بعد میں تسی بھول جاندے ہو تے جلدی چلنے پہلے ویڈیو ویکھنے تے ویڈیو بہت ہی ایمان خروز ویڈیو ہے تے ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا۔ One of the person told me a very famous BMW ad. There is a girl standing in front of the ad with bikini, and the ad says, "Test drive her now." Who? The girl or the car? What are they doing? They're selling our daughters, they're selling our mothers, and talking about women's rights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں میں جنسی خواہش پیدا کی، یہ اتنی ہی اہم ہے جتنی کھانے کی خواہش۔ دوسری خواہشات کی طرح جو اللہ نے انسانوں میں پیدا کی ہیں، یہ طاقتور ہے اور کمزور انسان کو مغلوب کر سکتی ہے۔ جنسی خواہش قانونی یا غیر قانونی طور پر بھی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اس بات پر زور دینا ہوگا کہ اسلام اپنی عظیم تعلیمات کی روشنی میں انسان کو اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے صحیح طریقے سے آگاہ کرتا ہے۔ اس علم کی تلاش میں اس معاملے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن اخلاقی حدود واضح بیان کی گئی ہیں کہ سوال کرتے وقت بھی حیا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، ایسا ہی سوال ایک مسلمان لڑکی نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا۔ وہ اس وقت انڈونیشیا اور ملائیشیا کے ٹور پر تھے، جہاں حسب معمول لیکچر کے بعد سوال و جواب کا سیشن رکھا گیا تو اس لڑکی نے مائک پر آ کر پوچھا کہ سیکس ایجوکیشن سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ٹاپک ہمارے یا کسی بھی مسلمان ملک میں بہت حساس سمجھا جاتا ہے۔ اگر سیکس ایجوکیشن کا مضمون نصاب میں ہو تو بطور مسلمان استاد اور طالب علم کی کیا ذمہ داری ہے؟ So my question is about your opinion in sex education, where it is quite sensitive in our country. So in your opinion, doctor, if the subject had been here, what is the duty of a Muslim as a professional other than just teaching? And also what is the duty of a Muslim as a professional, as a student? اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر سیکس ایجوکیشن قرآن و سنت کی روشنی میں دی جا رہی ہے تو یہ بالکل درست ہے۔ اگر یہ قرآن و حدیث کی منافی ہے تو پھر اس کی مکمل طور پر ممانعت ہے۔ سیکس ایجوکیشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں بھی اخلاقیات سے آری کوئی بات نہ ہو جائے۔ اگر کسی بھی وقت یہ مضمون پڑھتے ہوئے حیا ٹوٹ جائے، شائستگی کا دامن جہاں ذرا سا بھی چھوٹ جائے اور قرآن و حدیث کے خلاف بات چلی جائے تو یہ حرام ہے۔ میں میڈیکل کا طالب علم رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے طلبہ کو کہتا ہوں کہ آپ جنسیات کی طرف نہ جائیں، بغیر شادی کے سیکس نہ کریں ورنہ آپ کو بیماری لگ جائے گی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ میں ان کو یہ مضمون پڑھاتے ہوئے نصیحت بھی کر رہا ہوں۔ لیکن اگر پڑھاتے اور پڑھتے وقت حیا کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں سیکس ایجوکیشن پڑھاتے ہوئے کسی بھی چیز سے بنا ہوا خاتون کا ایک ماڈل دکھاتا ہوں جو برہنگی کو بھی ظاہر کرتا ہے تو یہ بالکل ممنوع ہے۔ I will tell to the gents, don't have sexual intercourse during menstruation. Sex education, no problem. But if I break the haya and try and show a model of a woman in front of a gent, it is not permitted. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب تک آپ قرآن و حدیث کو سیکس ایجوکیشن دیتے وقت بھی تھامے رکھیں گے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس قرآن و سنت کا ایک بھی قانون نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ میرا جواب ایک جنرل جواب ہے جو کسی بھی طرح کی سیکس ایجوکیشن پر لاگو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس سیکس ایجوکیشن کی بات کریں جو مغربی ممالک میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ بالکل ہی حرام ہے کیونکہ یہ طلباء کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جہاں تک شرعی حکم نہ ٹوٹے آپ سیکس ایجوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل
मुकम्मल करके अपनी सीट पर जा बैठे तो माइक पर एक और लड़की आई और उसने भी अपना सवाल रखा। ओनी नामी थाईलैंड की लड़की ने पूछा कि मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आजकल औरतों को माजी के मुकाबले में अलग नजर से देखा जाता है। औरतें हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं। बिजनेस या मुलाजमत में खातून के किरदार से मुतालिक आपका क्या कहना है? खवातीन लीडर भी बन सकती हैं, मुल्क से बाहर भी काम करती हैं। इस्लाम में मुसलमान औरतों को महरम के बगैर सफर करने से मना किया गया, तो फिर आजकल जो सिनफी मसावात की बात होती है इसका क्या होगा? Actually, women are not allowed going without mahram or anything else. And also there is the idea which is gender equality. So to summarize my questions again, your suggestion to the Muslim प्रोफेशनल रोल। नाज़रीन, ये सवाल बहुत ही अहम था और आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जेंडर इक्वालिटी यानी मर्द और खातून बराबर की बात होती है और कई तंजीमें भी उठ खड़ी हुई हैं जो सिनफी मसावात पर मुसलमानों को शदीद तनकीद का निशाना बनाती हैं। इस लड़की ने भी इससे मुतालिक सवाल किया था कि अगर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो इस्लाम में महरम के बगैर सफर ही नहीं करने दिया जाता। डॉक्टर साहब ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बहन, आपने मेरा लेक्चर सुना है तो मैंने भी यही बात की कि इस्लाम में खवातीन को बराबर के हुकूक दिए गए। इस्लाम भी सिनफी मसावात पर अमल करने की तलकीन करता है। मर्द और औरतें बराबर हैं मगर वो एक जैसे नहीं। अल्लाह ताला ने खवातीन को मर्दों से अलग बनाया है, जिस्मानी तौर पर, साइकोलॉजिकली भी मुख्तलिफ हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं माँ बनना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मर्द कभी माँ नहीं बन सकते। अल्लाह ताला ने मर्दों को ऐसा जिस्म ही नहीं दिया जो किसी बच्चे को रख सके। अल्लाह ताला ने खवातीन को माँ का रुतबा दिया क्योंकि खवातीन बच्चों के मर्दों से ज्यादा केयर कर सकती हैं। Each has a different role. I cannot say, I'm equal to the woman, therefore I want to become a mother. I cannot. Can I become a mother? Cannot. A woman, she's a mother. Allah has made biologically a woman. She's meant to be a better mother, a man. A woman can take care of a child better than a man. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी मुआशरे के बिल्कुल उलट किरदार पर भी तनकीद की और कहा कि आजकल हम देखते हैं मगरबी ममालिक में माएं काम पर जा रही हैं और मर्द घर बैठे बच्चे संभाल रहे हैं। मर्द और औरतें बराबर हैं मगर एक जैसी नहीं। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक इम्तिहान में काफी तलबा शरीक हैं, दो टॉप पर आते हैं, उनके नंबर एक जैसे हैं। एक के नंबर 100 में से 80 हैं, दूसरे के बराबर हैं। इसी पर्चे में 10 सवाल आए। पहले तालिब इल्म ने हर सवाल में 8 नंबर लिए, दूसरे तालिब इल्म ने हर सवाल 8 सवालों में से 10 नंबर लिए। 2 सवाल गलत हो गए, नंबर बराबर हैं, मगर किसी को एक सवाल में दूसरे तालिब इल्म पर बरतरी हासिल है और किसी को दूसरे सवाल में। ऐसे ही खवातीन और मर्द बराबर हैं, मगर किसी काम में मर्द अच्छे हैं तो किसी काम में खवातीन बेहतर हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो दोनों कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे काम हैं जो औरतें कर सकती हैं मगर मर्द नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे घर में एक डाकू आ जाता है तो मैं अपनी बीवी को जगा कर नहीं कहूँगा कि जाओ डाकू को भगा दो, इसका मुकाबला करो। मैं अपनी बेटी को नहीं कहूँगा कि डाकू को भगाओ। अगर जेंडर इक्वालिटी की जो बात होती है इस पर अमल करें तो फिर तो ये काम औरतों को भी करना चाहिए। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, और जब बात आती है माओं पर तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने पूछा कि मेरे प्यार और एहतराम का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उस शख्स ने फिर सवाल किया, किसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया फिर तुम्हारी माँ। और चौथी बार जब उस शख्स ने पूछा तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप। इसका मतलब है कि औलाद की मोहब्बत और एहतराम की 75% मुस्तहिक माँ होती है, 25% बाप है। यानी माँ को गोल्ड मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल भी और ब्रॉन्ज मेडल भी, और बाप को सिर्फ 27 सर्टिफिकेट ही मिला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि मर्द और औरतें बराबर हैं मगर इनके किरदार एक जैसे नहीं, और जो मगरबी मुआशरा सिनफी मसावात का इस्लाम मुखालिफ तूफान खड़ा करता है वो भी औरतों और मर्दों को असल में बराबर नहीं समझता। अगर ऐसा है तो जब ओलंपिक्स में रेस होती है तो क्या मर्द और औरतें इकट्ठे भागते हैं? अगर वो बराबर हैं तो इनको तो एक ही रेस में भागना चाहिए। मगरबी मुआशरा भी जानता है कि अगर मर्द और औरत एक ही ट्रैक पर भागेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। फुटबॉल में मर्दों के मैचेस अलग होते हैं और औरतों के अलग। मगरबी मुआशरा ये जानता है मगर वो लिबरलिज्म पर झूठे मजाकरे करते हैं। लिबरलिज्म की आड़ में वो हमारी
हमारी माओ बहनों की इज्जतें नीलाम करना चाहते हैं। मगरब का लिबरलिज्म का प्रचार औरत के जिस्म की नुमाइश से ज्यादा कुछ नहीं, वो इसको आर्ट और कल्चर का नाम देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल देते हुए कहा कि टीवी पर अक्सर इश्तहार आते हैं, मोटरसाइकिलों के इश्तहार में औरत को दिखाया जाता है, हालांकि मोटरसाइकिल मर्द चलाते हैं। मुझे एक इश्तहार के बारे में बताया गया, मैंने वो नहीं देखा, मगर बताने वाले ने बताया कि BMW कार का इश्तहार था। इसमें एक लड़की मुख्तसर कपड़े पहने गाड़ी के आगे खड़ी थी और आवाज आती है कि टेस्ट ड्राइव करें। ये डबल माने हैं कि लड़की को टेस्ट ड्राइव करें या कार को। One of the person told me a very famous BMW ad. There is a girl standing in front of the ad with bikini, and the ad says, "Test drive her now." Who, the girl or the car? What are they doing? They are selling our daughters, they are selling our mothers, and talking about women's rights. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को नसीहत की कि आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा। मर्द और औरतें इस्लाम में बराबर के हुकूक रखते हैं, मगर वो जिस्मानी और साइकोलॉजिकली एक जैसे हरगिज नहीं। आपको अगर नौकरी करनी है तो बाहिजाब रहना है, मोहतात रहना है, महरम के बगैर सफर नहीं करना। अगर मजबूरी है और महरम के बगैर जाना है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपना हुलिया रखें कि कोई भी आप पर किसी किस्म की बुरी निगाह न डाले, और कुरान हदीस और शरीयत की रोशनी में इन चीजों पर अमल करें जिनकी इस्लाम ने इजाजत दी है, और जिनसे मना फरमाया है उनसे कोसों दूर रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह जी, सुभान अल्लाह। सुनिया तुसी मुस्लिम लड़की का सवाल कि सैक्स एजुकेशन के बारे सानू दसो, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत सारिया मिसालां दे के उस लड़की को समझाया, जवाब दिता। फिर उन्हें भी दसिया कि मर्द ते औरत बराबर ने, पर ना तो जिस्मानी हालत दे विच बराबर ने ते ना ही साइकोलॉजिकली, यानी कि जो भी कह रहे सन इंग्लिश का अल्फाजा ते असीं अनपढ़। अज वाली वीडियो मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं बहुत पसंद आई होगी। ते अज वाली वीडियो के बारे तुहाडी की राय है तुसीं कमेंट सैक्शन में लाजमी दसना। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।